Next chapter, it is related with the study of the carboxylic acids. There are numerous carboxylic acids which we use in our daily life. Carboxylic acids are nothing but they are the organic acids. Benzoic acid, it is present in the most of our edible materials. Vinegar, it is also a part of the sour taste or many pickles. Lactic acid, that is present in the curd. Citric acid, that is present in the many citrus fruits like lemon and oranges. So various organic acids, they are being utilized by us. Acetic acids, it is also present in the body. Wherever the anaerobic respiration occurs, the whitest part of the flesh that determines the presence of the acetic acid in the body. Let us study about their properties and their preparations. First of all, what are the general features of the carboxylic acid? कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो भी होंगे उसमें उसके फार्मूला में जो है वो COOH ग्रुप जो वो लगा होता है. COH ग्रुप जो है वो दो के ग्रुप के कॉम्बिनेशन से बनता है. वन इज कार्बोनिल ग्रुप, अनदर इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो वो बनता है. इट इज कार्बो पार्ट फ्रॉम द कार्बोनिल. इट इज XYL part from the hydroxyl group. When both are these combined, then they form carboxylic acid. So it is a combination of the carbonyl group as well as the hydroxyl group. What are the method of the preparations? There are various methods. Only few they are in your syllabus, and one of the main is the ester hydrolysis. Why he has stressed upon the ester hydrolysis? Many esters they exist in the nature, so from the esters we can easily hydrolyze them and we can have the various acids. See, this is a general formula of the ester. It is COO group. It is RCOOR, that is an ester. When you hydrolyze it with the acid, that is H positive ion, or with the base, it gives an acid and alcohol. So it is a ester, that is methanol ester. How we determine the ester? जिसके साथ CO ग्रुप लगा होगा वो पीछे वाला पार्ट एसिड का होता है. जो ऑक्सीजन के अगले वाला पार्ट होता है वो अल्कोहल का पार्ट होता है. तो अल्कोहल का पार्ट ये है, सो दैट इज ए मिथेनॉल. और एसिड का पास जिसके साथ ये कार्बन लगा है, सो दैट इज ए एसिड एंड दैट वन इज द अल्कोहल. सो बाय द एस्टर हाइड्रोलिसिस वी कैन प्रिपेयर द acids, carboxylic acids. Another preparations, they are not in your syllabus. He has discussed in detail the hydrolysis of the ester. ये आगे एसिड डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज में भी आएगा, वहां उसने बेसिक और इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो वो डिस्कस किया हुआ है. सो मैकेनिज्म अगर इसका डेवलप करना हो तो किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, तो ये पार्ट थोड़ा सा आपको यहां नजर आ रहा है. दैट इज द एस्टर. इट इज CH3COO. थोड़ी देर के लिए वाटर लिखा है मैंने, H और OH, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. दैट इज गिविंग एसिड प्लस इट इज गिविंग ए अल्कोहल. This part it is attached with the oxygen, so that is alcohol part, and जिसके साथ C double bond O लगा है, that is the acid part. So hydrolysis products are, it is acetic acid and it is the ethanol. So it is the hydrolysis of the esters. तो दो तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं. वो कौन से तरीके हो सकते हैं कि यहां से बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसका, द बॉन्ड ब्रेकेज इज फ्रॉम हियर. OH पार्ट C2H5 के साथ चला गया तो यहां C2H5OH बन गया. H इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो OH बन गया. एक तरीका सोचने का ये हो सकता है कि इस तरीके से जो प्रोडक्ट बन रहा है. दूसरा वे क्या हो सकता है
OH मैं इथाइल पार्ट के साथ नहीं लगाता हूं, OH को मैंने कार्बन के साथ लगा दिया, तो ये हमारे पास एसिड बन गया। और H को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया और इसको यहां से बॉन्ड ब्रेकेज जो वो शो कर दी, तो आपके पास क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। सो दैट मे बी द way by which the hydrolysis has been taken place। द्वारा देखो मैंने क्या बोलने की कोशिश की कि ये एस्टर है, एस्टर की ब्रेकेज हम यहां से मान सकते हैं कि यहां से एस्टर जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो OH इसके साथ, इथेनॉल C2H5 के साथ, तो C2H5OH, H इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसका मतलब है ये एसिड बन गया। एक तरीका सोचने का ये हो सकता है। दूसरा मैं इनको रिवर्स कर देता हूं, OH मैंने कार्बन के साथ जोड़ दिया तो मेरे पास ये एसिड बन गया, H मैंने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया तो मेरे पास इथेनॉल बन गया। जो पहले वाला केस है उसको मैं यहां से ब्रेक कर रहा हूं, किसको, बॉन्ड को, और सेकंड में जो है वो कहां से ब्रेक कर रहा हूं, इसको नेक्स्ट पार्ट से जो है वो ब्रेक कर रहा हूं। इसकी ब्रेकेज कहां से होती है उसके बेस पर जो है मैकेनिज्म के बहुत सारे नाम जो हैं वो दिए हुए हैं। If there is a scission of the bond from here, which place? Let me take here pointer, highlighter. So, if bond breaks from this side, then this is termed as the alkyl oxygen cleavage। क्या बोलते हैं इसको, alkyl oxygen cleavage बोलते हैं, क्योंकि ये alkyl पार्ट है। which part? This part is the alkyl part, और ये क्या आ गई, ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। अगर एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज है तो उसके लिए Al वर्ड जो है वो यूटिलाइज होता है मैकेनिज्म में। जैसे यहां नीचे आपको बहुत सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 और उसके साथ ACAL लिखा है। वेर एवर इट इज Al रिटन, इट मीन्स इट इज एल्काइल। एल्काइल ऑक्सीजन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एल्काइल ऑक्सीजन। अगर बॉन्ड यहां से ना ब्रेक होकर के बॉन्ड जो है वो इस साइड से ब्रेक होता है, इसके यहां से, तो उसको बोलते हैं एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। क्या बोलते हैं उसको, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। एसाइल ऑक्सीजन के लिए नीचे उसने वर्ड AC यूज किया हुआ है। सो जो तो बिगर डिजिट है वहां पर A और B लिखा है केवल, लेकिन उसके साथ AC और Al लिखा है। AC मीन्स एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज और Al मीन्स एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। इसके साथ 1 2 लिखा है। 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और 2 का मतलब है वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर और वाई मॉलिक्यूलर किस वे से बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर और बाई मॉलिक्यूलर बोला जाता है इस बेस पे कि अगर उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यूज्ड एसिड या यूज्ड बेस, अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस तो बेस हुआ यूज हुआ होगा, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो एसिड यूज हुआ होगा। तो अगर वो एस्टर और एसिड दोनों के ऊपर डिपेंड करता है रेट, तो बाई मॉलिक्यूलर हुआ। लेकिन अगर वो एक ही कंपोनेंट के ऊपर, एस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो यूनिमॉलिक्यूलर हुआ। सो रेट विल डिटरमिन वेदर 1 विल बी रिटन देयर और 2 विल बी रिटन देयर। सो जनरली इट इज 1 and 2 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर एंड bimolecular. A and V are written. A is written for acid and B is written for base. B किसके लिए लिखा है, बेस के लिए लिखा है। सो मैं यहां से एक आध कंपोनेंट उठाता हूं। इट इज AAC1, दैट मीन्स एसिड हाइड्रोलाइज। इट इज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज एंड 1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर। इट इज अगेन A, एसिड हाइड्रोलिसिस। इट इज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, what it is a y-molecular mechanism. Then A means acid hydrolyze, it is Al, that means alkyl oxygen cleavage, and it is unimolecular. Just like BaL2, it is basic hydrolysis, means hydrolysis has been carried out by the base. Alkyl oxygen cleavage is there and it is a bimolecular reactions. So these terminologies has been utilized or symbols has been utilized to define the mechanism of the base ester hydrolysis, whether it is basic one or whether it is the acidic one. Let us discuss first of all, it is BAC2 mechanism.
It means it is basic hydrolysis. So you are using a base. So see here, hydroxyl ions, sodium hydroxide or potassium hydroxide, that has been utilized for the hydrolysis, and that is a ester. So it is hydrolyzed by the base, and that is giving an acid and the alcohol as the product. It is acyl oxygen cleavage as supposed, not clear here कि वह कहाँ acyl oxygen cleavage हो रही है, अभी तक कोई हमने डिस्कस नहीं किया. Then it is 2 means it is a Y-molecular mechanism. It means it is depending upon, rate is depending upon the base concentration as well as it is depending upon the concentration of the ester. किसकी? बेस की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. तो यहां मैं सपोजिशन के बेस पर जो है वो मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की हुई है, तो यहां उसी के बेस पर मैं इसको आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूं. सो ये देखो, यहां से OH नेगेटिव आइन C2H5 के ऊपर अटैक कर रहा है और सपोज इट इज डिटैच्ड फ्रॉम हेयर. सो फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग डिटैच्ड? इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द दिस पोजीशन. सो इट इज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज. क्या आएगा ये? एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज. तो ये पार्ट जो आपके पास बन गया, दैट इज द इथेनॉल पार्ट. सो दैट इज C2H5OH. सो एट लास्ट here it is C2H5OH that is being formed. पीछे जो पोर्शन बच गया, that is CH3COOH. so this portion is left here, that is left the acid. तो इसके साथ H from the water ऐड हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा. तो बोलने के लिए तो मैंने उसको बोला कि ये BaC2 मैकेनिज्म है. कौन सा मैकेनिज्म है? BaC2. लेकिन इसमें एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज है, सो इट इज टर्म्ड एज द BaL2 मैकेनिज्म. क्या बोलेंगे इसको? BaL2 इंस्टेड ऑफ BaC2. रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द एस्टर कंसंट्रेशन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन. सो दिस इज द वन सपोजिशन दैट मे बी दिस इज द mechanism. Second case we can suppose here. So this is the next case here. So base attacking this central carbon, it is giving a pentavalent state. तो पेंटावलेंट स्टेट जो कार्बन की अनस्टेबल होती है, क्योंकि 4 ही बॉन्ड वो बना सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है. सो हेयर पार्सली आई सपोज दैट हाइड्रोक्सिल आयंस पार्सली मेक्स द बॉन्ड एंड देयर इज ए पार्शियल ब्रेकेज ऑफ द मिथॉक्सी पार्ट और OCH3 एस्टर जो इथेनॉल अल्कोहल वाला पार्ट है वो धीरे धीरे यहां से डिटैच हो रहा है और OH का पार्ट जो है वो अटैच हो रहा है. तो ये बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड, इसको जो है वो मैं हाफ बॉन्ड मान लूंगा. विच बॉन्ड? दिस बॉन्ड इज द हाफ बॉन्ड एज वेल एज दिस बॉन्ड इज द हाफ. सो हाफ एंड हाफ इट इज 1. दीज आर 2 एंड दिस इज थर्ड वन. सो टोटल बॉन्ड्स दे आर 4. तो पार्शियल देयर इज ए नेगेटिव चार्ज ऑन द OH, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द OMe. कि जैसे OH अटैच होना शुरू होता है तो उसके ऊपर पार्शियल चार्ज आ जाता है और OMe मिथॉक्सी ग्रुप जो है यानी इथर अल्कोहल वाला पार्ट जो है उसके ऊपर भी जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा. देन देयर इज ए लॉस ऑफ द मिथॉक्सिल ग्रुप हेयर. सो मिथॉक्सिल पार्ट इट इज लॉस्ट हेयर, दिस वन, एंड side wise acid is formed. So that is the acid. Now this is a base. क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये एसिड है, तो एसिड इस बेस को जो हाइड्रोक्सिल आयन ट्रांसफर कर देगा. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड एनाइन ऑफ द एसिड. सो दिस इज द अनदर सपोज्ड मैकेनिज्म. सिंस इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस एज वेल एज कंसेंट्रेशन ऑफ द ester, so that is a biomolecular reaction. It is involving the acyl oxygen cleavage. कहां से acyl oxygen cleavage की बात कर रहा है? It is telling about the cleavage of the acyl oxygen. bond यहां से break हुआ है, so it has been broken from this side, so it is BaC2 mechanism. क्या बोलेंगे इसको? base catalyzed. It is acyl oxygen cleavage as well as it is a biomolecular reaction. So that is the another supposition regarding the mechanism of the reaction. Then case third, this may be the another one, that
hydroxyl might have attacked this carbonyl center and bond this carbon oxygen bond. It shifts to the upper side. There is formation of the negative charge. Then negative charge again re-enters here and there is loss of the methoxyl part or this OCH3 part. So this methoxyl part is lost from here. So it is a anion. Again this is an acid, that is an anion. So there is a shift of the proton from the acid to the anion, forming methanol, and this is the anion, acid anion. So that may be the another mechanism, supposition again it is, कि probably this is the way by which the reaction has been carried out. Now let us seek evidences regarding these. So first evidence is the tracer technique. What is this tracer technique? We take the help of the radioactive isotopes of the oxygen in order to analyze the product. ट्रेसर टेक्निक में ऐसा होता है कि आप किसी एक पार्ट में जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो ऐड कर देते हैं और बाद में उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ट्रेस करते हैं कि किस केमिकल के साथ वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. वो हमें जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि मैकेनिज्म में कौन सा पार्ट जो है कौन या किस बेस से जो वो रिएक्शन हुआ होगा. सो what is the result here I am going to tell now. तो यहां देखो जरा, ये बेस जो है वो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज टेकन विद द ऑक्सीजन 18. तो बेस जो ले रहा है वो उसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रेडियो एक्टिव है. तो जब इस तरह का बेस यूटिलाइज किया और बाद में प्रोडक्ट को एनालाइज किया, इट इज फाउंड दैट O18 विच वॉज द प्रेजेंट इन द बेस, वो सारा का सारा O18 जो वो एसिड के साथ गया और अल्कोहल के साथ नहीं गया है. बट आई एम गोइंग टू टेल, ट्रेसर टेक्निक में आप एक आध एलिमेंट, एक आध केमिकल में जो है किसी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो यूज करते हैं, जिससे आपको मैकेनिज्म को ट्रेस करने में हेल्प मिलती है कि किस तरह से जो है वो रिएक्शन कैरी आउट हुआ है. तो यहां पर एस्टर तो यूटिलाइज किया एज इट इज, लेकिन जो बेस यूटिलाइज किया, बेस में O18 एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूटिलाइज कर लिया. जब प्रोडक्ट को आइसोलेट कर रहे हैं तो सारी की सारी O18 कहां चली गई? इट इज विद द एसिड. देयर इज नो O18 विच इज प्रेजेंट इन द अल्कोहल. तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन अल्कोहल के साथ लगी है, दिस इज एमाइल पार्ट C5H11 एमाइल अल्कोहल है, तो वो ऑक्सीजन जो वो ऑलरेडी उसके साथ अटैच रही है और इसके साथ यहां से आई है. सो दिस मीन्स दिस पार्ट हैज बीन डायरेक्टली ट्रांसफर टू द दिस साइड. सो इट मीन्स देयर इज ए एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज इंस्टेड ऑफ द एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज. कौन सा हुआ है? एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज हुई है, ना कि एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज हुई है. एक और एविडेंस है, वो स्टीरियोकेमिकल स्टडीज हैं. उसमें हम सपोजिशन कर सकते हैं यहां पर कि मान लीजिए यहां पर ये बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है, दिस वन, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग फ्रॉम द दिस साइड. सो व्हाट इज दिस? इट इज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज इंस्टेड ऑफ द एसाइल ऑक्सीजन. अगर पीछे से ब्रेक होता तो एसाइल ऑक्सीजन होनी थी, यहां से ब्रेक हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज ए एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज. अगर ये यहां से डिटैच हो जाए तो इस कार्बन के ऊपर 3 ग्रुप बचेंगे. वन इज CH3, अनदर इज द H, अनदर इज द C2H5. अगर 3 ग्रुप बनते हैं देन दैट इज ए कार्बोकेटाइन. और कार्बोकेटाइन जो वो फ्री स्टेट में जो है वो अगर आता है तो उसमें आपके पास 2 आइसोमर प्रोडक्ट बनेंगे. यानी ये जो लास्ट में प्रोडक्ट बना है, दिस प्रोडक्ट formed, this will be present in the 2 isomers. क्यों 2 आइसोमर बनेंगे इसके? 2 आइसोमर का मतलब है एक D आइसोमर और एक L आइसोमर. D मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी, L मीन्स लिबोरोटेटरी. कार्बोकेटाइन जो वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, उसमें फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है और रियर साइड अटैक भी पॉसिबल है. अगर फ्रंट साइड अटैक होता है तो एक आइसोमर बनता है और रियर साइड अटैक होता है तो दूसरा आइसोमर बनता है. जब भी इस तरह की चांसेस हो देन इट इज इक्वली लाइकली प्रोबेबल कि 50% D आइसोमर बनेगा, 50% L आइसोमर बनेगा. इसका मतलब जो लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट बनना चाहिए, द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड एट द लास्ट
इट शुड बी रेसमिक मिक्सचर, D+L दोनों का जो है वो रेसमिक मिक्सचर होना चाहिए. What when the product was analyzed, it is found that if already this is the stereo center or it is optically active center, कौन सा ये कार्बन जो optically active center है ये, जो इसकी जो ये स्टीरियो आइसोमर था, इफ इट वाज डी आइसोमर, द प्रोडक्ट अगेन आइसोलाइज्ड, इट वाज द डी आइसोमर. तो डी का डी आइसोमर तब मेंटेन रहेगा जब वो वहां से ब्रेकडाउन उसका हुआ ही ना हो. अगर ब्रेकडाउन होता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा और श्योरली कार्बोकेटाइन जो वो D+L आइसोमर में चेंज हो जाएगा. लेकिन वो D+L आइसोमर में नहीं चेंज हो रहा है. इट मीन्स दैट the bond has been broken from the acyl oxygen, not from the alkyl oxygen. So that is the suppositions, or that are the evidences which are telling about the you can say about the mechanism of the reaction. Let us see next further. More tracer techniques are involved here. So what are the another tracer techniques? अगर हम ऐसा एस्टर लें जिसमें ऑक्सीजन जो हो वो रेडिएक्टिव हो यहां पर, सो O18 जो अब कहां है, एस्टर में प्रेजेंट है. जब प्रोडक्ट एनालाइज किए तो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसा भी आया जहां पर आपके पास एस्टर बना है, लेकिन एस्टर में जो है वो क्या है, O18 नहीं है. इसका मतलब अगर ऑलरेडी इसके पास O18 था तो वो O18 यहां से गायब हो चुका है. इट मींस ऑक्सीजन विद O18 हैज बीन एक्सचेंज समवेयर एल्स, किसी और के साथ एक्सचेंज हो गई है. इट वाज फाउंड दैट इट वाज एक्सचेंज विद द सॉल्वेंट एज वेल एज इट वाज एक्सचेंज विद द बेस. वो बेस के साथ भी एक्सचेंज हो गई है और सॉल्वेंट के साथ भी एक्सचेंज हो गई है. हाउ दिस इज पॉसिबल? तो इसके लिए एक मैकेनिज्म जो है यहां पर डेवलप किया गया है, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है. इस मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट टाइम में जो वो डिस्कस करेंगे.